I just want to set myself free. मुझे डाइवोर्स चाहिए, तलाक दो. मैं डिवोर्स चाहती हूँ और अपना हक में नहीं छोड़ूंगी. In a conservative society like Kashmir, a lot of women are coming forward seeking help to dissolve bad marriages. They're asserting themselves and speaking out against injustices done to them at both regular and Sharia courts. The reason to end bad marriages range from incompatibility, drugs, growing independence, women moving to big cities from small towns, and raising aspirations. The Grand Mufti designate of the Supreme Court of Islamic Shariat in Srinagar is a reformer who believes strongly in the emancipation of women of Kashmir. At his court, about 45 cases have been resolved in less than 2 months. At other places in Kashmir too, women are leading the way in ending unhappy marriages, leaning on professional, familial or organizational support. Writer Priyadarshini Sen and photo editor Narendra Bisht traveled through Kashmir to show us some of these path-breaking women and how they are surviving. I came to know On the first night of the marriage that the husband has physical disability. He's important, yeah. Right. He's not a man. Huh. And he had hidden this fact from me for about 1 year because we were engaged 1 year back. You know, the second and the third and the fourth night, when, you know, we did not... Yeah, the purpose of a understand. marriage. Yeah. Then it is not fulfilled. You know, Right. when a man is just disabled right. totally. Right. So obviously I will come to know about Right, it, and exactly. I asked him that you have some problem and you have hidden it. And then he is telling that I have this problem, but I'll take treatment. Okay. But all the treatment failed. I came to know that this is not a temporary problem. Right. It is a permanent problem with him, and he has been living with it. Right. And he has been hiding it from the society, hiding it from the girl whom he married. Right. Kind of so-called, it is a namesake marriage. Yeah. Because, you know, it's the biological need of every human being. Absolutely. The purpose of the marriage. Right. What is the purpose of the marriage? Right. It is the biological need of every human being. Absolutely. There is a mental burden upon me, and I just want to dissolve this thing, and I just want to set myself free. वो मौलवी था. 6 महीने तक इसने मेरे साथ ज़िंदगी गुजारी श्रीनगर में. अच्छा. मगर वो भी खाली 3 महीने अच्छे रहा. 3 महीने के बाद इसने मुझे आस्ता आस्ता वो सताने लगा. मुझे कपड़े नहीं लाते थे, ऐसे कुछ भी नहीं करते थे. जैसे मुझे 10 रुपए की ज़रूरत थी तो वो कहते थे मेरे पास है नहीं, मैं अपने मायके से पैसे लाते तो बस. उसने महरा भी नहीं दिया मुझे, वो भी खा लिया इसने 50,000. खाली 3 महीने मेरे साथ अच्छा रहा. 3 महीने के बाद इसने दूसरे से अफेयर करना शुरू किया. हाँ, जब अफेयर शुरू कर दिया तो ये मेरे साथ हम रिश्ते भी नहीं करने लगा. मिसाल कमरे में नहीं आते हैं, रात के 10 बजे आते हैं, रात के 12 बजे. ना, बस ऐसे ही मजाक उड़ाते थे मेरे साथ, टाइम पास करते थे मेरे साथ. आपको पता ही है ना औरतों के को क्या क्या मर्द क्या क्या करते हैं. ऐसे जिससे मैं तंग आ गई बहुत अपनी ज़िंदगी में. अपनी ज़िंदगी में बहुत तंग आ गई. मैंने इसको बोला था मुझे डाइवोर्स चाहिए, इससे बेहतर मुझे डाइवोर्स चाहिए. I came here just before 45 days. 45 दिन में मैंने nearly 60 cases resolved. I have been nominated as a Grand Mufti. I'm a designated Grand Mufti of Jammu and Kashmir. तो मेरे वालिद साहब चूँकि अब एज से ज़्यादा एज फैक्टर भी उनका है तो उन्होंने मुझे लाया बाहर से. अराउंड 60 केसेस ऑल मैट्रिमोनियल. अब तालीम आ गई है बिकॉज यू सी द एजुकेशन भी बढ़ रही है. पहले ज़माने में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, अब उनको पढ़ाया जाता है. अब वो देख सकते हैं, दे कैन शेप देयर फ्यूचर. तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में. अब विमेन जो पहले गांव में की लड़कियां जो थी या सबर्बन एरियाज़ की थी वो ज़्यादा पढ़ती नहीं थी. अब उनमें ज़्यादा वहाँ कॉलेजेस खुल गए हैं, तालीमी इदारे आ गए हैं तो वो ज़्यादा पढ़ते हैं. और नेचुरली जब वो पढ़ेंगे तो वो सोचेंगे कि हमें क्या करना है. रोज़ यहाँ चीख पुकार होती थी जब मारता था बैलेट से, हैंगर से. मैं डिवोर्स चाहती हूँ और अपना हक में नहीं छोड़ूंगी उसको एक पैसा भी. बिल्कुल. अपना हक मैं अकेली लड़ रही हूँ. आप क्या हक मांग रहे हो आप? जो इसने मुझसे एक तो पहले धोखा दिया, डीसी बोला. एक तो मेरे इज्जत, मेरे विश्वास, मेरे भरोसे को तोड़ा. दूसरा मैंने क्यों 10 साल ये जुल्म सहे. तो
थाने में बंद करवाया, रात भर रहा थाने में। अब वो केस भी नॉट एडमिट हुआ, वो केस भी नॉट एडमिट हुआ। इसने मुझे इतने बुरे केस में फंसाने की कोशिश की और पुलिस वाले ने, इसने DO ने इसकी मदद की, लेकिन अब केस नॉट एडमिट हुआ। लेकिन जो सख्ती मैंने बर्दाश्त उस टाइम की, जो मैंने सहा, मेरे ज़मीर ने, उसका हिसाब कौन देगा मुझे? जो मैं रात को थाने में रही, हालांकि उन्होंने मुझे लॉकअप में नहीं रखा, उधर पुलिस वाली डाली थी, उसको वो सरदारनी थी, उसने मुझे अपने पास रखा, लेकिन उसका हिसाब मुझे कौन देगा? जो जुल्म मैंने सहे उसका हिसाब कौन देगा? क्यों मैंने सहे? मेरी क्या गलती थी? ये मेरा भाई है, इसको सारा पता है, हर चीज़ का, हर वाक़े का, मेरे रोने का, मेरे जो मुझ पे गुजरी एक एक बात का इसको पता है। इनकी वजह से उन्होंने मुझे हौसला दिया। पता चला कि वो ड्रग्स लेता है, नशे और मनशियात का शिकार हो चुका था। बिल्कुल बहुत गंदी तरह से। हाँ, गंदी तरह से 9 साल से वो ले रहा था। फिर हमने डॉक्टर से बात की, उसने कहा, हमने उससे कहा कि क्या ये सुधर सकता है, हम इसे एक चांस देंगे। डॉक्टर ने बोला कि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, दुनिया में कोई चीज़ इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि ये छोड़ सकता है, ये इसका मर्ज़ है, ये बीमारी नहीं है कि ठीक हो सकती है, ये मर्ज़ है, मर्ज़ कभी ठीक नहीं होता। फिर हमने बोला उनको कि हम ये रिश्ता नहीं कर सकते, हमें ये रिश्ता नहीं करना है, हमें तलाक दो।